Jai Hind guys and welcome back to another video of actually now we are not SSB2 Academy as you know but ठीक है चलता है यार इतना. So in this video we will be talking more about the first CDS exam which is actually scheduled for 12th of April. April में आपका एग्जाम होना है. So we are just left with last 1 month. So what you have to actually prepare in this last 1 month? कैसे prepare करोगे? Maths, English and GS की strategies that you have to follow now. PYQ based options that you have to follow and current affair in which you have to look for. If you want to wear this uniform, then actually you should be moreover concentrated on this particular topic on which we will be talking today about. Fine? Chalo. So first of all, let's talk about the exam pattern. So there are two form of serious exam actually. दो form के serious exam होते हैं. एक which you can give with maths और जिसके लिए आप eligible होगे for IMA, INA and AFA. Again, there is one catch. If you are appearing for your maths exam, let's talk about your maths specifically, then your age should be at max of 24 years. You will be allowed to give the exam for your IMA, INA and AFA. There is another one criteria for INA and AFA that you should have your physics and maths. Physics and maths at your 12th. Fine. But for IMA, you are eligible after any stream. So for that, you have to give your maths exam. And this is basically for permanent commission. If you are going for your permanent commission. Next, there is another exam which is for just for OTA. Where is this situated? Chennai. चेन्नई में है ना. जिस अगर नॉन टेक के लिए आप जाते हो देन यू विल बी गोइंग टू चेन्नई. इफ यू आर गोइंग फॉर योर टेक्निकल एंट्री, टेक के लिए आप जाते हो देन यू विल बी गोइंग टू ओटीए गया. ये दोनों जगह आपकी बेसिकली एकेडमीज है दैट आर OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी. सो इफ यू वांट टू गो फॉर योर विदाउट मैथ्स एग्जाम देयर विल बी जस्ट टू पेपर्स दैट आर योर व्हाट जीएस एंड इंग्लिश. फाइन. और आपका एग्जाम मैक्सिमम 4 घंटे में खत्म हो जाएगा. आफ्टर दैट यू कैन गो बैक होम. बट इफ यू आर एलिजिबल फॉर योर मैथ्स यू विल बी हैविंग 3 पेपर्स इन ओवरऑल, इंग्लिश, जीएस एंड लास्ट पेपर विल बी ऑफ मैथ्स. आपको ये 3 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे. अगेन व्हेन आई टॉक अबाउट योर इंग्लिश देन देयर विल बी अ टोटल ऑफ 120 क्वेश्चंस कैरिंग अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स. फाइन. एंड अनदर अगेन फॉर जीएस द सेम क्राइटेरिया, 120 क्वेश्चंस कैरिंग 100 मार्क्स इन टोटल. बट there is a catch when I talk about a maths option. There will be a total of 100 questions and carrying total of 100 marks. Means 1 mark for every question. And moreover, one more thing, there will be a negative marking of 1/3. So keep that thing in your mind. Got it? Now we'll be talking about how actually you have to prepare for your exam. So just you can read that. Now we are just left with last month. एक आखिरी महीना बचा है. The only preparing should be selective. अब आप लक्ष्मीकांत लेके नहीं बैठ सकते हो. अब आप एनसीईआरटी लेके नहीं बैठ सकते हो. गेटिंग माय पॉइंट. सो नाउ इट इज यू डोंट एक्चुअली हैव अ टोटल टाइम कि आप हर चीज कवर कर सको. सो बी सिंपली बी सेलेक्टिव व्हाइल प्रिपेयरिंग. गेटिंग माय पॉइंट जेंटलमैन. चलो. सो there is no time left to improve your English by reading newspaper and articles. Moreover, for English pattern, follow the PYQ. This is the last minute options you are left with. And you have to give the mock. जितने ज्यादा mock दे सकते हो, जहां से भी आपको mock मिलते हैं, give that mock because that is what will help you at this particular moment. Getting it, gentlemen? Now, for GS portion, again, GS का पार्ट कितना बड़ा है? GS is very vast. इसमें हर एक चीज आता है. Again, you will not be able to cover it in last 1 month. और 1 month की बात भी मत छोड़ो. अगर आप एक साल भी प्रिपेयर करके जाओगे ना तो 120 में से मैक्सिमम चांस है कि यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट 70. क्योंकि जीएस इज वेरी वास्ट. वेरी मीन्स वेरी वेरी वास्ट. तो अभी तो आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप एनसीईआरटी से जा सको. यू डोंट हैव टू गो थ्रू दैट. बट what you actually have to do is again PYQs खोलो. और PYQs खोलो तो खोलो उसके रिलेटेड. जैसे मान लो अगर एंशिएंट का टॉपिक है, लेट्स से द टॉपिक इज रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को अच्छे से रिवाइज करो. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस मोमेंट. इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट क्लियर. नाउ अगेन द लास्ट ऑप्शन इज योर मैथ्स. मैथ्स के लिए यू शुड बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लियर रहो. एंड एटलीस्ट पर डे 3 hours practice is required. At least 3 hours of practice every day. That is the core required thing. Getting it? Concept को अपने clear करो and give the mock और PYQ is what will help you in this movement. Getting my point, gentlemen? चलो next, what to actually prepare now? Again we'll start with English क्योंकि पहला एग्जाम किसका होता है? English का. First thing, clone test. Around 20 questions आते हैं इस चीज से. तो what? Carrying a good number of marks.
करो इसको प्रिपेयर, रीड द पीवाईक्यूज पढ़ो, ऑनलाइन पोर्टल पे जाके मॉक्स दो, रीड आउट द क्वेश्चंस रिलेटेड, क्वेश्चंस फॉर्म करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सबसे आसान चीज बैठता है. यू हैव टू एक्चुअली कवर दिस, you have to know the meaning of the whole paragraph which is actually given over there. Getting my point gentlemen? Again ये चीज तो आपको करना ही करना है, क्योंकि यहां से अगर आपने ये 20-22 क्वेश्चन में से 15 भी सही कर दिए तो you will be getting a good amount of weightage then. Synonyms and antonyms, यहाँ पे you should be selective. Again it is a very vast topic. PYQs देखो, PYQ से related word देखो, उससे related देखो कि what could be antonym for the same, what could be the synonym, meaning जानो, get a perfect view. अगर इस 15 में से आप मान के चलो 10 भी नहीं, अब मान लो आउट ऑफ दिस 9 यू आर एबल टू डू, तो ये कितने बैठ गए टोटल मिला के, हाउ मच इट इज 24. अब क्लोन टेस्ट 20 है, लेट्स टेक यू विल बी एबल टू डू 10, 20 आगे 24 आगे 34, दैट्स ऑल, यू क्लियर द वेटेज ऑफ दिस होल. देन अगेन द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये थोड़ा हार्ड होता है बट एक्चुअली दिस रिक्वायर्स योर रीजनिंग एबिलिटी. ठीक है, ट्राई करो, ये 5 में से 1-2 तो सही कर ही पाओगे. पैराजंबल, अगेन वेरी इजी थिंग, जस्ट यू हैव टू बी क्लियर विथ योर ग्रामर से क्लियर रहोगे तो यू विल बी एबल टू डू दिस एटलीस्ट 5 to 6. अगेन सेंटेंस जंबल, अगेन वेरी इजी, बस व्हाट यू हैव टू सी इज योर ग्रामर देखो, ये चीज भी आपकी हो जाएगी. देन लास्ट एरर डिटेक्शन, अगेन रिलेटेड टू द ग्रामर, यू शुड बी क्लियर ऑन दिस ग्रामर पार्ट. ठीक है, 20 क्वेश्चन है, ट्राई अटेम्प्टिंग और डूइंग करेक्ट एटलीस्ट 10. फाइन. लास्ट इट इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट. अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी किससे रिलेट करता है, आपके ग्रामर से. सो यू कैन सी द वेटेज ऑफ ग्रामर, हाउ मच इट इज होल्डिंग. करो ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से. फाइन. नेक्स्ट वी आर गोइंग विथ आवर मैथ्स पार्ट. मैथ्स अगेन IMA, INA एंड AFA, ये तीनों के लिए रिलेटेड है. तो बी स्पेसिफिक. मेंसुरेशन, ऑलवेज क्लियर विथ ईच एंड एवरी फॉर्मूला. एरिया हो गया, क्यूब हो गया, सॉरी वॉल्यूम हो गया, यू हैव टू नो द फॉर्मूला. फुलक्रम हो गया, उसके बाद डायगोनल्स हो गए, ये सब के फॉर्मूला को देख के जाना. रिलेट क्वेश्चंस लाइक दिस, अगर ये दिया हुआ है देन व्हाट वुड बी हिज एरिया. अगर अगेन स्क्वायर दिया हुआ है व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ दिस, ये पढ़ के जाना. क्यूब दिया हुआ है देन दे माइट बी पेंटिंग और समथिंग, अगेन बी क्लियर दैट व्हाट यू कैन डू इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. गेटिंग माय पॉइंट? ये सारी चीजों को तो देख के ही जाना. आई डोंट वांट यू गाइस टू लीव दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स. फाइन. नेक्स्ट वी आर हैविंग अलजेब्रा. तो व्हाट यू हैव टू सी इज square formula, cube formulas, even you can see the 4 times formulas, and after this you should know the simplification. Simplification तो करना ही करना, because that is what is required over here. Simple and compound interest, very easy topic, very easy topic. इसके अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो I am sure you will be able to do 5 out of 5. So be clear in this. Again speed and distance, very easy topic, again very easy topic. इसमें एक चीज हमेशा याद रखना, everything will be related to that simple and single formula, that is speed is equal to distance upon time. इस फॉर्मूले पे पूरा स्पीड एंड डिस्टेंस आपका क्लियर हो जाएगा. गेटिंग इट? नंबर सिस्टम, अगेन अ गुड टॉपिक बट यू कैन सॉल्व इट अगर यू आर नोइंग द फॉर्मूला. सो सॉल्व दिस टॉपिक आल्सो एफिशिएंटली. फाइन. परसेंटेज, अगेन वेरी इजी टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक. 2 क्वेश्चन 2 के 2 सही करके आओगे, आई एम श्योर अबाउट इट. प्रॉफिट लॉस, अगेन वेरी इजी टॉपिक. एक क्वेश्चन आता है तो इसको तो मारना ही मारना है. Geometry, again related to the formula, square, triangle, then what I can tell you, rectangle, then rhombus, everything, parallelogram, ये सारी चीजें आप देख के जाना इसके लिए. It is very important. Again next, time and work, very easy topic. Again एक ही चीज है, LCM निकालो, उसके बाद उस चीज को सॉल्व करो अच्छे से. 3 out of 3. Trigonometry, again not that easy topic, but if you know to simplify, if you know the formulas, then again out of 14 I am sure you will be doing 10 at least, right? मीन मीडियन मोड, ये तो सबसे आसान टॉपिक है यार, ये तो छोड़ना भी मत. 4 क्वेश्चन दिखा रहा है, 4 के 4 सही करके आना है. लास्टली क्लॉक, 2 free questions, you will get this 2 marks freely. Again getting it? Next we are having last part which is GS, history, 15 to 20 questions. और ये कहां पे रिलाई करते हैं, I will tell you that also. Ancient and modern, ठीक है. मिडिवल अब बहुत कम पूछता है, मिडिवल इज वेरी लेस व्हाट दे आर आस्किंग, एंड दैट टू रिलेटेड टू मुगल्स एंड ऑल, ये तो पूछते भी नहीं है. Getting my point? So prepare well in your ancient and your modern part. Modern में भी what you have to actually prepare is your what? बताओ. What you have to actually prepare in this is your British Empire. Moreover, their fights with other empires when they conquered India or what, East India Company. About the different plans, about the different organizational structure. ये सारी चीजें आपको पढ़ना है. Getting my point? Ancient में read from IVC से स्टार्ट करना पढ़ना, और उसके बाद क्या क्या आपको इसमें मोर इंक्लूडेड आपको करना है इज व्हाट इज योर IVC डायनेस्टीज. उसके बाद 16 महाजनपदास, एंड आफ्टर दिस हाउ व्हाट
नंदास, देन आफ्टर दिस मौर्यास, देन गुप्तास। ये सब तो आपको मेन देखना ही है, यू हैव टू गो थ्रू दिस टॉपिक वेरी 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 केयरफुली। देन बुद्धिज्म, जैनिज्म, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट, फाइन। साइंस अराउंड 15 to 30 क्वेश्चंस, 30 मान के चलते हैं तो देयर वुड बी, let's take an average of 10 question in physics, 10 in chemistry and sorry I don't know why this is happening, and 10 in what, physics, chemistry and bio। एटलीस्ट पांच पांच तो तीनों में सही करोगे तो 15 अगेन यू विल बी गेटिंग फ्रॉम हियर, गेटिंग इट। रिवाइज वेल, अगेन द सेम थिंग व्हाट आई विल टेल यू इज दैट PYQs ये आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे लास्ट 1 मिनट, सॉरी लास्ट 1 मंथ। पॉलिटी अगेन, रीड ईच एंड एवरी आर्टिकल, स्टेटमेंट्स, रिलेटेड केस, ये सारी चीजें जरूरी है इस चीज में पढ़ना। इकोलॉजी, इकोलॉजी में अगर आप पढ़ पाते हो तो पढ़ लो, वरना मोर ओवर फोकस ऑन योर हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी। और यहाँ पे ये तो मेन टॉपिक है, लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स will give you at least 10 marks अगर आपको पता है तो। read the statement, again military and current affairs में क्या आता है, exercise that happened, getting it, exercise हो गया, उसके बाद induction, recent induction क्या क्या हुए हैं, read that thing very very carefully। then what else, what we are actually buying or planning to buy, then what about our operations that we have did, moreover then some recent launch, क्या launch हुआ है अभी recently, कोई ऐप, कोई नया स्कीम, renaming of schemes, then roads initiative, then building of some new projects, ये सब तो आपको देख के ही जाना है। अगेन बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी क्लियर, एंड ये सारी चीजें एटलीस्ट आपको ये एंड ऑफ मार्च तक तो करके जाना, और मिड ऑफ मार्च टिल द 15 ऑफ मार्च के जितने करंट अफेयर है, प्रिपेयर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, क्लियर। Then we are having economics, economics में economics will be also related to somewhat current affairs, तो ये चीज भी ध्यान से लेके जाना। लास्ट geography, read about different theories, read about the different layers, read about the borders, ठीक है, ये सब चीज आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, then only you will be able to clear this exam। Now let's talk about the basic strategy that you have to follow, and for first of all again starting with maths, which is actually for IMA, INA and AFA, फाइन, ये तीनों के लिए ये बहुत जरूरी है। 3 hours of daily practice, ये मैं बार बार बोल रहा हूं because this is what is required, this will clear your understanding, understand it very efficiently, क्योंकि ये आपको पढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। then PYQs भी बार बार बोल रहा हूं because that will what will help you, model papers of different academies, आप ये सब चीज चेक कर सकते हो, mocks for the same, and for concept you can watch the videos of different institute which are available online। और CDS के लिए लोग ज्यादातर फॉलो करते हैं संदीप सर को, संदीप ब्रार सर को मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं, तो इफ यू वांट यू कैन वॉच हिज प्लेलिस्ट टू, इट इज फाइन, आई हैव आल्सो वॉच दैट, और अच्छा प्लेलिस्ट है, इट इज वर्केबल प्लेलिस्ट, देख सकते हो उसको, इट इज अवेलेबल ऑन YouTube on his channel itself, और या there is another channel on which this is available, वो चीज आप पढ़ लेना अच्छे से। अगेन लास्ट 1 महीना बचा है, तो इधर उधर हाथ पैर मत मारो, बिलीव इन योर सेल्फ प्रिपरेशन, सेल्फ प्रिपेयर करो, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्लियर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वी आर हैविंग आवर जीएस पार्ट। जीएस में क्या है, जीएस में सबसे पहले डिफेंस और करंट अफेयर्स, ये तो मेन आप करके जाना, बिकॉज इट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, एंड द रीसेंट डेवलपमेंट्स दैट हैपेंड, जो मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूं। गो थ्रू द आर्टिकल्स, आर्टिकल्स देखो ऑफ सम केसेस ऑफ पॉलिटी पार्ट, पॉलिटी में जैसे मान लो आर्टिकल अभी क्या ट्रेंडिंग चला था, यूजीसी किससे रिलेटेड होगा, सेम थिंग इट इज रिलेटेड टू दिस, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगेन यू हैव टू वॉच दिस। देन अगेन इलीगल इमिग्रेंट्स, उसके रिलेटेड पढ़ के जाना, डीपीएसपी इसमें आ जाता है यूजीसी, रीड दिस थिंग वेरी केयरफुली। देन उसके बाद उससे पहले क्या आता है बताओ, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लेना, उसके बाद आता है व्हाट, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लेना, उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन भी पढ़ के जाना, बिकॉज देयर इज मेनी थिंग दैट इज हैपनिंग, इलेक्शन से रिलेटेड पढ़ के जाना, वेयर इज द इलेक्शन इन 2026, वेस्ट बंगाल हीटेड अप एरिया, यस और नो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो ना, कमेंट में बताना कितना पढ़ लिया आप लोगों ने। यू शुड एक्चुअली बी गुड एट योर नॉलेज अबाउट ज्योग्राफी, अगेन द सेम थिंग जो मैंने आपको बताया था, मैप्स एंड बॉर्डर, इंडिया के बॉर्डर पढ़ना, ईरान it is trending, then what else is trending, Venezuela, and how indirectly इंडिया से कैसे रिलेट करते हैं, you have to read that, रशिया, ये सब चीज पढ़ना। then what, सेवन सिस्टर्स, सेवन सिस्टर्स अपने पढ़ के जाना, पर एक बार नीचे लिखना तो कमेंट में किसको पता है, राइट डाउन द
सेवन सिस्टर्स नेम, सेवन सिस्टर्स के नेम लिखो और उसके नीचे उनके कैपिटल लिखो. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दैट करेक्टली. और यहाँ तक कौन कौन पहुंचा है वीडियो में ये भी पता चलेगा. ट्राई टू स्टडी द एंशिएंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री. सब चीज ऊपर बता चुका हूं मैं. व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर. ठीक है. रीड बेसिक साइंस क्वेश्चन बिकॉज दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. बेसिक पढ़ो इंक्लूडिंग लॉ ऑफ फिजिक्स, रिएक्शंस ऑफ केमिकल एंड बॉडी ऑर्गन्स. ये सब पढ़ो विद यूजेज. पढ़ो कितने टाइप के लॉज होते हैं. न्यूटन के लॉ पढ़ो, उसके बाद तुम्हारा आइंस्टाइन पढ़ो, उसके बाद व्हाट इज बायोन फोर्स आता है ना, किसमें आता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ो. टेक माय पॉइंट क्लियर. ये सारी चीजें पढ़ो. बजट कवर करो. 2026 का बजट कितना डिफेंस बजट है इस बार बताओ. 7.8 लाख करोड़ है कि नहीं. पढ़ो ये बजट पे पढ़ो कि किसको कितना बजट एलोकेट हुआ है, कैसे काम करेगा बजट. गेटिंग इट. चलो लास्ट वी आर लेफ्ट विथ इंग्लिश पार्ट. फाइन. So what we have to moreover focus is vocab part. It is having a good amount of weightage at your time. Fine. ऊपर इतने सारे क्वेश्चन पता है. vocabulary पढ़ो उसके थ्रू. go through the synonyms and antonyms again from the PYQs. पता रखा है हर एक चीज. इससे रिलेटेड पढ़ाई करो और रिलेटेड वर्ड्स पढ़ो क्योंकि दिस टॉपिक इज अगेन वेरी वास्ट. अगर कहीं से आपको कोई पीडीएफ मिल रहा है रिलेटेड टू एंटोनिम एंड सिनोनिम तो वो पढ़ के जाना है. एटलीस्ट पढ़ के जाना. रट्टा मत मारना बट रीड अबाउट दैट वेरी एफिशिएंटली. फिर उसके बाद वी आर हैविंग पैराग्राफ क्वेश्चंस. वेरी वेरी इजी. इसमें अगर आप चाहो तो सारे सही कर सकते हो. गो थ्रू दिस थिंग वेरी 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 एफिशिएंटली. फाइन. देन अगेन द PYQs पैटर्न को फॉलो करो. ऑलवेज फॉलो द पैटर्न ऑफ द PYQ. कवर द ग्रामर बिकॉज ग्रामर इज आल्सो हैविंग अ वेरी ह्यूज वेटेज. ग्रामर को तो आपको कवर करके ही जाना है. ग्रामर का वेटेज तो सबसे ज्यादा है. क्लियर. नाउ द PYQ. दिस इज व्हाट इज योर व्हाट वेदा. ये आपका वेदा है टू लर्न और टू क्लियर दिस CDS 1 2026. Getting it. Most important thing is your PYQs. ठीक है. At least practice the last 10 years of PYQs. लास्ट के 10 साल के PYQs देखो क्योंकि यूपीएससी कहीं ना कहीं से पैटर्न फॉलो करता है. आई डोंट वांट यू टू जस्ट लुक थ्रू द CDS PYQs. अगर आपको देखना ही है तो CAPF का देखो. CAPF के PYQs देखो. Then what else? CSC में प्री के PYQs थोड़े बहुत देखो. रिलेट करो आपके टॉपिक से. हाउ कैन दैट कम. क्योंकि धीरे धीरे यूपीएससी व्हाट इट इज डूइंग. जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है एग्जाम पैटर्न और एग्जाम लेवल बढ़ता जा रहा है. एफकेट देखा आपने नहीं देखा. एफकेट का HCL ने कितना बुरा हाल कर दिया इस बार. इंग्लिश में तो बच्चे रो रहे थे. तो यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है कब क्या कर दे. गेटिंग इट. सो 10 ईयर का पढ़ना है. नॉट जस्ट ऑफ CDS बट अगेन CAPF CSC सबके पढ़ के जाओ. रिलेटेड टॉपिक्स के जो आपके सिलेबस में है उससे रिलेटेड पढ़ के जाओ. ठीक है. लुक थ्रू द क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस द सेम एंड रिलेटेड टॉपिक्स. ये तो करके ही जाना. देयर शुड बी नो डाउट. PYQs इज योर रामबाण इलाज. गेटिंग इट. नेक्स्ट इज आवर करंट अफेयर्स. करंट अफेयर में क्या करना है. रिमेंबर वन थिंग. डिफेंस अफेयर्स ऑफ लास्ट 6 मंथ इज द मोस्ट क्रूशियल वन विच यू हैव टू प्रिपेयर फॉर. अगेन 10 बार बोल चुका हूं अभी तक. डिफेंस अफेयर्स करके ही जाना बिकॉज दिस इज व्हाट विल हेल्प यू ओवर देयर. लुक फॉर द रीसेंट इनॉग्रेशन. रीसेंट क्या क्या खुले हैं देखो. व्हाट एक्चुअली हैपेंड. असम में क्या हुआ है. असम में क्या लॉन्च हुआ है अभी. इमरजेंसी लैंडिंग शिप हुई है कि नहीं हुई है. प्लेस पढ़ के जाओ इसका. अगेन रीड अबाउट इट. ठीक है. गेटिंग माय पॉइंट. AI सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है. पढ़ के जाओ. कहां हुआ है. भारत मंडपम में हुआ है. पढ़ो ये सारी चीजों को. कितने कंट्रीज आए थे पढ़ो उन सारी चीजों को. कौन कौन मेन आया था पढ़ो उन सारी चीजों को. गेटिंग इट. ये सारी चीजें पढ़ के जाना. अगेन डिफेंस अफेयर्स में क्या हुआ है. इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हुआ है कि नहीं हुआ है. कहां हुआ है. वैजाग में हुआ है. पढ़ो ये सारी चीजों को. गेटिंग माय पॉइंट क्लियर. लुक थ्रू द इंटरनेशनल अफेयर्स अगेन विच इज हैविंग इंपैक्ट ऑन इंडिया. क्या है इसमें. ईरान. और ईरान क्यों है. चाबहार पोर्ट में. चाबहार पोर्ट में देखना इस बार अपनों ने कितना बजट दिया. अगेन बांग्लादेश इलेक्शन. कौन जीता बांग्लादेश में. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी. पढ़ो ये सारी चीजों को. अगेन रीड थ्रू द ईयरली बजट. बजट पढ़ो. बजट कितना है 2026 का. पढ़ो सारी चीजों को. डिफेंस में कितना गया. डेवलपमेंट में कितना गया. रोड्स में कितने गए. सारी चीजें पढ़ के जाना. रीड थ्रू द रिसेंट कॉन्फ्रेंस. कॉन्फ्रेंस मतलब AI सबमिट हुआ अभी योगी जी कहां गए. जापान गए कि नहीं गए. क्यों गए. पढ़ो सारी चीजों को. गेटिंग द थिंग क्लियर. चलो again the final and more crucial is that overall 1 month is very fine time to prepare for your CDS. again if you are having a good amount of knowledge prior because लास्ट के महीने में मोस्टली होता है ना रिवीजन. तो इफ यू आर एबल टू डू दैट तो कोई दिक्कत नहीं बैठेगा. इन एटलीस्ट फाइन 3 आवर्स अ डे. 3 घंटे तो आपको मैथ्स प्रिपेयर करने में लगेगा अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो. इफ नॉट मैथ्स तो आपका GS एंड व्हाट इंग्लिश. और अगर मैथ्स के साथ आप कर रहे हो तो एटलीस्ट यू शुड फाइंड 5 आवर्स अ डे. और अगर आप वर्किंग हो देन इट माइट बी हार्ड फॉर यू बट इफ यू वांट टू बी एन ऑफिसर इन आर्म फोर्सेस यू हैव टू फाइंड योर टाइम बिकॉज ऑफिसर बनने के बाद देयर इज नो फिक्स्ड रूटीन. कभी 24 घंटे भी वहां लगे रहोगे तो कभी 8 घंटे भी. गेटिंग द थिंग क्लियर. चलो
That's all from my side, guys. Hoping that you will be doing a fine amount of work from tomorrow, and all the very best for your CDS exam. And we are preparing for more things which will be coming and which are already aligned. As you can see, we have changed various things, and I hope that all things will be coming very soon for you all. Getting it? Chalo, gentlemen. Jai Hind.